নমস্কার, দেখছেন টক টু বাংলা। আমি অভিষেক রয়েছে আপনাদের সাথে। এই মুহূর্তে যে খবর নিয়ে উপস্থিত হয়েছে, আপনারা জানেন যে কঙ্গনা রানাওয়াত তিনি রীতিমতন জেন জি মুভমেন্টে যে সমস্ত মহিলারা যুক্ত হয়েছিলেন তাদের উদ্দেশ্যে জেনারেশন গাটার বলে একদম সরাসরি কটাক্ষ করেছেন। অর্থাৎ নর্দমা জেনারেশন নর্দমায় থাকে তাদের সঙ্গে তিনি একদম সমতুল্য মনে করেছেন এই জেনারেশনকে, যারা এই ককরোচ জনতা পার্টি মুভমেন্টে যে সমস্ত মহিলারা গিয়েছিল আন্দোলন করতে তাদেরকে। এবং তার সঙ্গে তিনি বলেছেন এই সমস্ত মহিলাদের পড়াশোনা নেই, তাদেরকে দেখতে ভালো না, তাই তাদের ভালো বিয়ে হবে না। তার সঙ্গে তিনি বলেছেন এরা বিভিন্ন ধরনের নেশা করে এবং এরা শুধুমাত্র সমাজে কোনো ধরনের কোনো কন্ট্রিবিউশন না করতে পেরে বাবা মায়ের টাকায় এখানে এসে আন্দোলন করছে। কিন্তু এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে সঞ্জয় সিং বক্তব্য রাখেন। আম আদমি পার্টির ম্যাক্সিমাম সাংসদ তারা ছেড়ে চলে গিয়েছেন, বিজেপি জয়েন করেছেন, কিন্তু সঞ্জয় সিং একাই লড়ে যাচ্ছেন, সেরকম একটা প্রেক্ষিত উঠে এসছে। এবং সঞ্জয় সিং একদম সরাসরি কঙ্গনা রানাওয়াতের উদ্দেশ্য করে এই কথা, জেনারেশন গাটার এই কথার উদ্দেশ্যে সরাসরি সংসদে দাঁড়িয়ে যে কথাটা বললেন খুব ইন্টারেস্টিং। তিনি বললেন এখন তো সেই সাংসদের গালে একটা থাপ্পড় পড়েছে, 5 আঙ্গুলের দাগ রয়েছে। কয়েকদিন আগে যে ঘটনাটা ঘটেছিল, তো সেই ঘটনাটা আপনি ইমিডিয়েটলি আমি জেপি নাড্ডাজিকে আবেদন করছি যে ওই সাংসদকে বোঝান। তা যদি বোঝাতে না পারেন তাহলে কিন্তু গাটারে নিয়ে গিয়ে আপনাকে ফেলবে এই যে জেন জি আন্দোলনকারীরা। খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপট। তার সঙ্গে এই যে নতুন বিল সেটাকেও একদম কটাক্ষ করেছেন, কাটাছেড়া করেছেন, বুঝিয়েছেন যে এই বিল আদপেই কোনো কাজে দেবে না এবং সম্পূর্ণভাবে একটা আই ওয়াশ করার মতন বিল মোদী সরকার এনেছে। তিনি তার বক্তব্য রেখেছেন বিরোধীদের জায়গা থেকে। কি বলছেন সঞ্জয় সিং পুরোটা শুনুন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু দলিল তিনি তুলে ধরেছেন এবং কঙ্গনা রানাওয়াতকে এত গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা এই মুহূর্তে কিন্তু কোনো সাংসদ এত ভালোভাবে দিতে পারেননি। অবশ্যই রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বাইরে বেরিয়ে এসে বলেছেন, কিন্তু একদম সরাসরি কঙ্গনা রানাওয়াতের কথা তুলে তাকে এইরকম থাপ্পড় মারার কথা তুলে কটাক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রেক্ষাপট। সংসদে এই ধরনের ছবি খুব গুরুত্বপূর্ণ। যখন সংসদ চলে আমরা প্রতি মুহূর্তের আপডেট আপনাদের সামনে দিতে থাকি, তাই এটাও আপনাদের অবশ্যই সামনে থেকে দেখা দরকার। এবং সঞ্জয় সিং এর সম্পূর্ণ বক্তব্য শুনলে অনেকটাই আপনারা বুঝতে পারবেন এই মুহূর্তে বিরোধীরা ঠিক কিভাবে বিরোধিতা করছে এবং মোদী সরকার কোথায় গিয়ে কোণঠাসা হচ্ছে। मानवर में अपनी बात की शुरुआत नीट पेपर लीक के कारण जिन 21 बच्चों ने आत्महत्या करके अपनी जान दी, उनको सर झुका के नमन करते हुए, श्रद्धांजलि देते हुए अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। मैं उन लोगों को भी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं जो पिछले 10 साल में 1,23,000 छात्रों ने सुसाइड किया, आत्महत्या किया और 2,000 छात्र हर साल सिर्फ पेपर लीक के कारण आत्महत्या की जिन्होंने। मान्यवर, मैं ये बिल पढ़ रहा था और आपने नीट के पेपर लीक के कारण जब 22 लाख बच्चे प्रभावित हुए तो आपने कहा री एग्जाम कराएंगे। पहली बार जब आपने एग्जाम कराया तो 22,80,000 बच्चे उसमें बैठे थे, लेकिन दोबारा जब आपने री एग्जाम कराया तो उसमें मात्र 20 लाख बच्चों ने हिस्सा लिया। 2,80,000 बच्चों ने हिस्सा नहीं लिया। उस गुनाह के लिए, उस पाप के लिए जिम्मेदार कौन है? दूसरी बात मान्यवर, यह बिल देख के मुझे लगता है कि सरकार खुद स्वीकार कर रही है कि देखो भाई, पेपर लीक तो होगा, पेपर लीक हम नहीं रोक पाएंगे, पेपर लीक होगा। हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनता है, बलात्कार के खिलाफ सख्त कानून बनता है। तो कोई हत्या का अपराधी होता है, बलात्कार का अपराधी होता है जिसको सजा मिलती है। पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है मान्यवर, पेपर कराने की जिम्मेदारी तो सरकार की है। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि आप ऐसा पेपर कराएंगे जिसमें पेपर लीक ना हो। यह आपको कॉन्फिडेंस नहीं, इसलिए आप ये कानून लेके आए। कानून में लिखा क्या है? इस कानून में आप लिख रहे हैं 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, 3 महीने में ट्रायल खत्म हो जाएगा। कितने कोर्ट हैं आपके पास? पूरे देश में कितने जजेस हैं आपके पास? फास्ट ट्रैक कोर्ट की असलियत मान्यवर पता है आपको? 2.5 लाख केसेस
फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये आपकी हकीकत है। फास्ट ट्रैक कोर्ट की हालत यह है, एक लड़की एसिड विक्टिम, शाहीन नाम है उसका, 15 साल तक फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मुकदमा चला और 15 साल के बाद सारे के सारे आरोपी बरी हो गए। क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात आप कर रहे हैं? गुमराह करने की बात आप करते हैं। मान्यवर, इनके राज में 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हुए। 1,20,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक टीचर है। 98,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बच्चियों के लिए टॉयलेट का इंतजाम नहीं है। 1,19,000 सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिसमें बिजली का इंतजाम नहीं है। मान्यवर, यह सरकार शिक्षा के ऊपर मात्र 2% पैसा खर्च करती है, मिड डे मील में नमक रोटी खाने को देती है। इसलिए क्योंकि मोदी जी का नारा है, अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी तो अंधभक्त बनेगा इंडिया। मान्यवर, इस सरकार ने कोयला चुराया, गैस चुराया, बिजली चुराई, पानी चुराई, शिक्षा चुराया, स्कूल चुराया, अस्पताल चुराया, पेपर चुराया। हम लोगों ने सोचा अब क्या चुराएंगे? बोले हम चंदा भी चुराएंगे, राम का चंदा भी चुराएंगे। पेपर चोरी से लेके चंदा चोरी तक सारे चोरी के गुनाह में तुम लोग शामिल हो। मान्यवर, किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है। किसान आंदोलन करता है तो खालिस्तानी हो जाता है। मुसलमान आंदोलन करता है तो पाकिस्तानी हो जाता है। नौजवान आंदोलन करता है तो चाइनिस्तानी हो जाता है। लेकिन मैं इस सरकार के बारे में कहना चाहता हूं, जो लोग AK-47 चलाते हैं, छात्रों के सर पे लाठियां चलाते हैं, आंसू गैस के गोले छोड़ते हैं, वो सरकार आतंकवादियों जैसा आचरण कर रही है, आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रही है। मैं ये कहना चाहता हूं। मान्यवर, प्लीज कंक्लूड। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इनको एक सुझाव देना चाहता हूं। इनकी एक सांसद ने वहां पर गई हुई नौजवान, खत्म कर रहा हूं सर, सबके ऊपर आपने 1-2 मिनट दिया, मुझे भी दे दीजिए। टाइम खत्म हो रहा है, बोलिए सर, अभी तो 3 मिनट बाकी है सर। बोलिए सर। छात्र जो गए वहां आंदोलन करने, उनको बर्बरता पूर्वक मारा गया, लाठियों से पीटा गया सर, उनके सर फोड़ दिए गए, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, वो चीखते रहे, चिल्लाते रहे, 500 छात्रों को घायल किया। और बिहार के अंदर इन लोगों ने AK-47 चलाया सर। वो आतंकवादी हैं हमारे छात्र, वो हमारे घरों के बच्चे आतंकवादी हैं सर, जिनके ऊपर आपने गोलियां चलाई। और तो और इनकी एक सांसद है मान्यवर, उन्होंने किसान आंदोलन में किसानों को गालियां दी, नौजवानों के आंदोलन में नौजवानों के लिए इतनी भद्दी टिप्पणी की। मान्यवर, इस सदन के अंदर मैं कह नहीं सकता मान्यवर। हमारी बच्चियों को यह कहा गया, उनके चरित्र के ऊपर सवाल उठाया गया। मैं निवेदन करना चाहता हूं JP नड्डा जी से, समझाइए अपने उस सांसद को। अभी तो उसको 1 थप्पड़ पड़ा, सिर्फ 5 उंगली के निशान पड़े थे। ऐसी बात करोगे, गटर जेनजी को गटर कहोगे, जेनजी को गटर करोगे, तो तुम्हारी सरकार को इस देश का नौजवान, इस देश का जेनजी पकड़ के गटर में डालने का काम करेगा। इसलिए तुम्हारी सरकार को मान्यवर, इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नौजवानों को गटर जेनजी मत बोलो। तुम्हारी सरकार को उठा के वो गटर में डालने का काम करेंगे। मान्यवर, इसमें ऐसे प्रावधान आप लेके आए हैं। माननीय संजय जी, मैं बस खत्म कर रहा हूं। अकेले स्पीकर हैं आप? हाँ, अकेले हैं। अकेले। सर, मैं ये सोच रहा था कि ये सरकार ऐसा कानून लेके आए, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे, याद रखना। माननीय संजय जी, अकेले रहेंगे तब भी तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। ये दादागिरी कहीं और दिखाना। बैठ जाओ, चंदा चोरी करते हो तुम लोग। माननीय तरुण जी, बैठ जाओ,
Please move. माननीय संजय जी एड्रेस द चेयर, एड्रेस द चेयर को एड्रेस करें, एड्रेस द चेयर। माननीय संजय जी मैं सीनियर खत्म कर रहा हूं, लीडर, सर। एड्रेस द अरे चेयर, नहीं एड्रेस द चेयर। माननीय तरुण जी पेपर चोर है, प्लीज सर। प्लीज सर, मैं सोच रहा था। संजय जी अंतिम में एक बात खत्म माननीय तरुण जी, करके खत्म। माननीय तरुण जी, पेपर माननीय चोर है, तरुण जी, पेपर चोर। प्लीज प्लीज अकेला रहूंगा तो प्लीज, रहूंगा माननीय तुमसे। तरुण जी, प्लीज। किसी गलत फहमी में माननीय मत रहना। संजय जी, किसी गलत माननीय फहमी में मत संजय जी, रहना। समय जा रहा है आपका, समय जा रहा है, सर, समय जा रहा है। हाँ, खत्म एड्रेस करो। करिए सर, डिस्टर्ब एड्रेस द करते हैं चेयर, लोग। एड्रेस द चेयर। मान्यवर जी। मैं सोच रहा था कि आखिर ये सरकार ये पेपर चोरों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। मुझे ये पता चला मान्यवर, Conclude करिए। ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी, खत्म कर रहा हूं, ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी जो गुजरात के अंदर ब्लैक लिस्टेड हुई, उससे बिहार में पेपर कराया गया, वहां भी ब्लैक लिस्टेड हुई। उसी से यूपी में पेपर कराया गया, वहां से भी ब्लैक लिस्टेड हुई। तो जो पेपर चोर हैं वो अहमदाबाद में ब्लैक लिस्ट हुए, बिहार में ब्लैक लिस्ट हुए, यूपी में पेपर चोरी की, क्योंकि उनको पेपर कराने का ठेका Thank इसलिए you. मिलता है Thank you. क्योंकि उनका संबंध। खत्म कर रहा हूं सर, Thank you. 30 सेकंड सर, 30 सेकंड। जी, बोलिए। उस ईडू टेस्ट कंपनी का पेपर चोर का संबंध देश के प्रधानमंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री से है। थैंक यू मुख्यमंत्री से है सर, मुख्यमंत्री से है, उनके फोटो मिल जाएंगे सर। खत्म कर रहा हूं, धमकी मत दिलवाइए सर। चोर हमको धमकी दे रहे हैं, ये चंदा चोर हमको धमकी दे रहे हैं। Anything unparliamentary will not go on record. Anything unparliamentary will not go on record. Please conclude करिए. I'll allow you. Please चंद्रशेखर जी के अंतिम लाइन conclude करिए. तो आप ही आ रहे हैं सर, हमको Conclude करिए. I'll have to go to हाँ, खत्म Hyderabad. करो। I'll allow you. Conclude करिए. बिठाइए Conclude करिए. उनके पेट पे दर्द शुरू हो माननीय गया सर। संजय जी, I'll have मिर्गी to के move on. झटके आ रहे हैं Conclude सर, तो करिए. उनको समझाइए। Conclude करिए प्लीज. मिर्गी के मैं झटके आपको आ रहे हैं समय सर, उनको दूंगा. समझाइए मैं सर। आपको समय दूंगा. I'll give you the time. इन लोगों Please. को। Conclude करिए. सर, Conclude करिए. अंत में Conclude करिए. Please. चंद्रशेखर जी स्वर्गीय प्रधानमंत्री जी की एक लाइन के साथ अपनी बात कहना चाहता हूं इस देश के नौजवानों की तरफ से आपको। जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, जिन हाथों में शक्ति भरी है राज तिलक देने की, उन हाथों में ही ताकत है सर उतार लेने की। इसलिए अहंकार Thank you.